یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ بشر بن البار رضی اللہ عنہ تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا اور بشر بن البار رضی اللہ عنہ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البار نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ آپ نے فرمایا، مت کھانا بشر، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البار بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے یہودن، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بن البار رضی اللہ عنہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر بن البار کو جب وہ آپ کے پاس بیٹھی تھی فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ خالد نے کہا، آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا، اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے، نعوذ باللہ۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ خالد نے جواب دیا، کئی بار۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے نعوذ باللہ قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ خالد نے جواب دیا، کیوں نہیں، بڑی آسان ترکیب ہے۔ یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ ابو جریج نے قہقہ لگا کر کہا، خدا کی قسم، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیس بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانشمند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈالیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہیں گے؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ابو جریج نے پوچھا، تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ مدینے۔ مدینے؟
अबू जुरैज ने हैरत से पूछा, वहां क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूँ, खालिद ने कहा और घोड़े को एड़ लगा दी। उसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा, अबू जुरैज का काफिला नजर न आया। खालिद नशेबी जगह से निकलकर दूर चला गया था। उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। उसे ऐसा लगा जैसे आवाजें उसका ताक़ुब कर रही हों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर, मोहम्मद के जादू में ताकत है। नहीं नहीं, उसने सर झटक कर अपने आप से कहा। लोग जिस चीज को समझ नहीं सकते उसे जादू कह देते हैं, और जिस आदमी का सामना नहीं कर सकते उसे जादूगर समझने लगते हैं। फिर भी कुछ न कुछ जरूर राज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई बात जरूर है। फिर भी कुछ न कुछ राज जरूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई बात जरूर है। ज़हन इसे चंद दिन पीछे ले गया। अबू सुफियान ने उसे अक्रिमा और सफवान को बुलाकर बताया था कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। अबू सुफियान को ये इत्तला 2 शुतर सवारों ने दी थी जिन्होंने मुसलमानों के लश्कर को मक्का आते देखा था। खालिद अपनी पसंद के 3 घुड़सवारों को साथ लेकर मुसलमानों के रास्ते में घात लगाकर रोकने के लिए चल पड़ा था। वो अपने उस जांबाज दस्ते को सरपट दौड़ाता ले जा रहा था। उसके सामने 30 मील की मुसाफत थी। उसे बताया गया था कि मुसलमान अभी किराल गैमम से अभी दूर हैं। खालिद इस कोशिश में था कि मुसलमानों से पहले किराल गैमम पहुंच जाए। मक्का से 30 मील दूर एक पहाड़ी सिलसिला था जो घात के लिए मौजूद था। अगर मुसलमान पहले वहां पहुंच जाते तो खालिद के लिए जंगी हालात दुश्वार हो जाते। उसने रास्ते में सिर्फ 2 जगह दस्ते को रोका और घोड़ों को सस्ताने का मौका दिया। उसने 2 जगहों पर अपने घुड़सवारों को अपने सामने ला खड़ा किया और कहा, ये हमारे लिए कड़ी आजमाइश है। अपने कबीले की अजमत के मुहाफिज सिर्फ हम हैं। आज हमें उज़ा और हुबुल की लाज रखनी है। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। अगर हम मुसलमानों को किराल गैमम के अंदर ही रोक कर उन्हें तबाह न कर सके तो मक्का पर मुसलमानों का कब्जा होगा। हमारी बहनें और बेटियां उनकी लौंडियां होंगी और हमारे बच्चे उनके गुलाम होंगे। उज़ा और हुबुल के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम कुरैश और मक्का की आन और वक़ार पर जाने कुर्बान कर देंगे। 300 घुड़सवारों ने नारे लगाए, हम उज़ा और हुबुल के नाम पर मर मिटेंगे, एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। किराल गैमम की वादी में मुसलमानों का खून बहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मक्का ले जाएंगे। मुसलमानों की खोपड़ियां मक्का ले जाएंगे, काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद का सीना फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। उसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। उसने निहायत कारगर जंगी चालें सोच ली थी। वो अपने साथ सिर्फ सवार दस्ता इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को बखेर कर और घोड़े दौड़ा दौड़ा कर लड़ना चाहता था। मुसलमानों की ज्यादा तादाद प्यादा थी। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को घोड़ों तले रौंद डालेगा। उसे अपनी जंगी फहम फरासत पर इस कदर भरोसा था कि उसने तीरंदाज दस्ते को अपने साथ लाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीरंदाजों को बुलंदी पर बिठा दिया जाता तो वो नीचे से गुजरते हुए मुसलमानों को चुन चुन कर मारते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को जरा सी देर के लिए रोका तो एक बार फिर उसने अपने सवारों के जज्बे को भड़काया। उसे उन सवारों की शजात पर पूरा एतमाद था। मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शुतुरबानों के बहरूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए जो मुसलमानों की रफ्तार की और दीगर कवायफ की इत्तलाएं दे रहे थे। वो बारी बारी पीछे आते और बताते थे कि मुसलमान किराल गैमम से कितनी दूर रह गए हैं। खालिद इन इत्तलाओं के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मामूली रफ्तार से उस फंदे की तरफ चले आ रहे थे जो उनके लिए खालिद किराल गैमम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इत्तला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से दुम्बे और बकरे ला रहे हैं। उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमले करने आ रहे हैं तो दुम्बे और बकरे क्यों साथ ला रहे हैं। उन्हें डर होगा कि महासरा तूल पकड़ गया तो खुराक कम हो जाएगी। खालिद के एक साथी ने ख्याल जाहिर किया, इस सूरत में वो इन जानवरों का गोश्त खाएंगे। इसके सिवा इन जानवरों का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। बेचारों को मालूम ही नहीं कि मक्का तक वो पहुंच ही नहीं सकेंगे। खालिद ने कहा, उनके दुम्बे और बकरे हम खाएंगे। मुसलमान अभी किराल गैमम से 15 मील दूर अस्फान के मकाम पर थे कि खालिद उस सिलसिला कोह में दाखिल हो गया। उसने अपने दस्ते को पहाड़ियों के दामन में एक दूसरे से दूर दूर रुकने को कहा और खुद घात की मौजूद जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो दर्रे तक गया। यही रास्ता था जहां से काफले और दस्ते गुजरा करते थे। वो यहाँ से पहले भी गुजरा था, लेकिन उसने उस दर्रे को इस निगाह से कभी नहीं देखा था जिस निगाह से आज देख रहा था। उसने इस दर्रे को दाएं बाएं वाली बुलंदियों पर जाकर देखा। नीचे आया
चट्टानों के पीछे गया और घोड़ों को छुपाने की ऐसी जगहों को देखा जहां से वो इशारा मिलते ही फौरन निकल आए और मुसलमानों पर बड़ी बेखबरी में टूट पड़े। वो मार्च 628 के आखिरी दिन थे। मौसम अभी सर्द था, मगर खालिद का और उसके घोड़े का पसीना बह रहा था। उसने घात का इलाका मुंतखब कर लिया और अपने दस्ते को कई हिस्सों में तकसीम करके घोड़ों को दर्रे के इलाके में छुपा दिया। अब उसने अपने उन आदमियों को जो मुसलमानों की पेशकदमी की इत्तलाएं लाते थे अपने पास रोक लिया, क्योंकि खदशा था कि मुसलमान उनकी असलियत मालूम कर लेंगे। मुसलमान करीब आ गए थे। रात को उन्होंने पड़ाव किया था। अगली सुबह जब नमाज फजर के बाद मुसलमान कूच की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम दौड़ते हुए आए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के उस मुसलमान ने कहा, खबर अच्छी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं। मक्का वालों की नीयत ठीक नहीं। मैंने कल से किरायल गैमम की पहाड़ियों में घूम फिर कर देख रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे वो नहीं दिख सके जिन्हें मैं देख आया हूँ। मैंने उनकी तमाम नक्ल हरकत देखी है। कौन है वो? अहले कुरैश के सिवा और कौन हो सकता है? उसने जवाब दिया, वो सब घुड़सवार हैं और दर्रे के इर्द गिर्द की चट्टानों में छुप गए हैं। तादाद 3 और 400 के दरमियान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जासूस ने कहा, मैंने अगर सही पहचाना है तो वो खालिद बिन वलीद है, जिसकी भाग दौड़ को मैं सारा दिन छुप छुप के देखता रहा हूँ। मैं इतनी करीब चला गया था कि वो मुझे देखते तो कत्ल कर देते। खालिद ने अपने सवारों को दर्रे के इर्द गिर्द फैलाकर छुपा दिया है। क्या ये गलत होगा कि वो घात में बैठ गए हैं? मक्का वालों को हमारे आने की इत्तला मिली तो वो समझे होंगे कि हम मक्का का मुहासरा करने आए हैं। सहाबा कराम में से किसी ने कहा, खुदा की कसम जिसके हाथ में हम सब की जान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कुरैश मुझे लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। हम जिस इरादे से आए हैं उस इरादे को बदलेंगे नहीं। हमारी नीयत मक्का में जाकर उम्रा करने की है और हम ये दुम्बे और बकरे कुर्बानी के लिए साथ लाए हैं। मैं अपनी नीयत में तब्दीली करके खुदाए जुल जलाल को नाराज नहीं करूंगा। हम खून खराबा करने नहीं, उम्रा करने आए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने पूछा, वो दर्रे में हमें रोकेंगे तो क्या हम पर अपने दुश्मन का खून खराबा जायज नहीं होगा? सहाबा कराम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इस सूरत हाल से बचकर निकलने के तरीकों पर और रास्तों पर बहस मुबाहसा हुआ। रसूल अकरम अच्छे मशवरे को ध्यान से सुनते और उसके मुताबिक हुक्म सादर फरमाते। आखिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 घुड़सवार मुंतखब किए और उन्हें इन हिदायत के साथ आगे भेज दिया कि वो किराल गैमम तक चले जाएं, लेकिन दर्रे में दाखिल न हो। वो खालिद के दस्ते का जायजा लेते रहें और ये दस्ते उन पर हमला करे तो यूं लड़ें कि पीछे को हटते आएं और बिखर कर रहें। तासुर ये दें कि ये मदीना वालों का हिरावल जैश है। इन 20 सवारों को दुआओं के साथ रवाना करके बाकी अहले मदीना का रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिया। आपने जो रास्ता इख्तियार किया वो बहुत ही दुश्वार गुजार था और लंबा भी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक मुश्किल ये भी थी कि अहले मदीना में कोई एक आदमी भी न था जो उस रास्ते से वाकिफ होता। ये एक और दर्रा था जो मस्निउल मरार कहलाता था। इसे जातुल हंजल भी कहते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उस दर्रे में दाखिल हो गए और सिलसिलाए कोह के ऐसे रास्ते से गुजरे जहां से कोई नहीं गुजरा करता था। वो रास्ता किसी के गुजरने के काबिल था ही नहीं। खालिद की नजरें मुसलमानों के हिरावल दस्ते पर लगी हुई थीं, लेकिन हिरावल के ये 20 सवार रुक गए थे। कभी उनके 2-3 सवार दर्रे तक आते और इधर उधर देख कर वापस चले जाते। अगर वो 20 के 20 सवार दर्रे में आ भी जाते तो खालिद उन्हें गुजर जाने देता, क्योंकि उसका असल शिकार तो पीछे आ रहा था। इन 20 सवारों पर हमला करके वो अपनी घात को बेनकाब नहीं करना चाहता था। ये कोई पुराना वाकया नहीं था, चंद दिन पहले की बात थी। खालिद परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का लश्कर अभी तक नजर नहीं आया। क्या उसने कूच मुलतवी कर दिया है या उसे घात की खबर हो गई है? उसने अपने एक शुतर सवार से कहा कि वो अपने बहरूप में जाए और देखे कि मुसलमान कहाँ हैं। इस दौरान 20 मुसलमान सवारों ने अपनी नक्लो हरकत जारी रखी। 1-2 मरतबा वो दर्रे तक आए और जरा रुक कर वापस चले गए। 1-2 मरतबा वो पहाड़ियों में किसी और तरफ से दाखिल हुए। खालिद छुप छुप कर उधर आ गया। वो सवार वहां से भी चले गए। इस तरह उन्होंने खालिद की तवज्जो अपने ऊपर लगाए रखी। खालिद के सवार इशारे के इंतजार में घात में छुपे रहे। सूरज गुरूब हो चुका था जब खालिद का शुतर सवार जासूस वापस आया। वो वहां नहीं है। जासूस ने खालिद को बताया
क्या तुम्हारी आंखें अब इंसानों को नहीं देख सकती? खालिद ने तंजिया लहजे में पूछा। सिर्फ उन इंसानों को देख सकती हैं जो मौजूद हों, शुतर सवार ने कहा। जो नहीं है वो नहीं है, वो कूच कर गए हैं। किधर गए हैं मैं नहीं बता सकता। खालिद और ज्यादा परेशान हो गया। सहरा की शाम गहरी हो गई तो उसने महसूस किया कि मुसलमानों के हिरावल के सवार भी वहां नहीं हैं। उसे उनके किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह तुलू हुई तो खालिद ने उसी दर्रे से निकल कर देखा। 20 सवार गायब थे। उसे अपनी नाकामी का एहसास होने लगा। उसके इरादे और उसके जंगी मंसूबे खाक में मिलते नजर आए। उसने सोचा कि वो खुद इस्फान तक चला जाए, लेकिन पहचाने जाने के डर से रुका रहा। उसने 2-3 आदमी ऊंची पहाड़ियों पर भेज दिए कि वो हर तरफ नजरें रखें। दिन आधा गुजर गया था, उसे कोई इत्तला न मिली। मुसलमानों के हिरावल के 20 सवार भी नजर न आए। उसे तवक्को थी कि वो आएंगे। दोपहर के लगभग उसका एक सवार घोड़ा सरपट दौड़ाता उसके पास आ रुका। मेरे साथ चलो, सवार ने तेज तेज बोलते हुए कहा। जो मैंने देखा है वो तुम भी देख लो। क्या देखा है तुमने? गर्द, सवार ने कहा। खुदा की कसम वो गर्द किसी काफले की नहीं हो सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुसलमानों का लश्कर हो? खालिद ने घोड़े को ईड़ लगाई और मक्का की समत पहाड़ी इलाके से निकल गया। उसे जमीन से गर्द के बादल उठते दिखाई दिए। खुदा की कसम, खालिद ने कहा, कबीला कुरैश में कोई ऐसा नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दानिशमंद हो। वो मेरी घात से निकल गया है। मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में किराअल गैमम की दूसरी तरफ से मक्का की तरफ निकल गए थे। रात को उनके 20 सवार भी दूर के रास्ते से उनके पीछे गए और उनसे जा मिले। खालिद ने घोड़ा मोड़ा और ईंट लगाई और किराअल गैमम के अंदर चिल्लाता और घोड़े को सरपट दौड़ाता फिर रहा था। बाहर आ जाओ, मदीना वाले मक्के को चले गए हैं। तमाम सवार सामने आओ। थोड़ी सी देर में उसके 300 घुड़सवार उसके पास आ गए। वो हमें धोखा दे गए हैं। खालिद ने अपने सवारों से कहा, तुम नहीं मानोगे, वो गुजर गए हैं। गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अब जिंदगी और मौत की दौड़ लगानी पड़ेगी। सुस्त हो जाओगे तो वो मक्का का मुहासरा कर लेंगे, वो बाजी जीत जाएंगे। आज मदीना के रास्ते पर जब मदीना करीब रह गया था, खालिद को याद आ रहा था कि उसे मक्का पर मुसलमानों के कब्जे का डर तो था, लेकिन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चाल पर अश कर उठा था। वो खुद फन्ने हर्ब ज़र्ब और अस्करी चालों का माहिर और दिलदादा था। वो समझ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिरावल के 20 सवार धोखा देने के लिए भेजे थे। सवारों ने उसे कामयाबी से धोखा दिया, उसकी तवज्जो को गिरफ्तार किए रखा और मुसलमान दूसरी तरफ से निकल गए। ये जादू नहीं, खालिद ने अपने आप से कहा। अगर अपने कबीले की सरदारी मुझे मिल जाए तो जादू के ये करतब मैं भी दिखा सकता हूँ। ये सही था कि उसके बाप ने उसे ऐसी अस्करी तालीम तरबियत दी थी कि वो मैदान जंग का जादूगर कहला सकता था, मगर उसके ऊपर एक सरदार था, अबू सुफियान। वो कबीले का सालार आला था। उसके मातहत खालिद अपनी कोई चाल नहीं चल सकता था। अपनी इस मजबूरी ने उसके दिल में अबू सुफियान की नफरत पैदा कर दी थी। उसे चंद दिन पहले का ये वाकया याद आ रहा था। 1400 मुसलमान उसकी घात को धोखा देकर मक्का की तरफ निकल गए हैं। उसने ये सोचा ही नहीं था कि 300 सवारों से मुसलमानों पर अकब से हमला कर दें। उसे एहसास था कि जो मुसलमान कलील तादाद में कसीर तादाद के दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, उन्हें 300 सवारों से शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कसीरुल तादाद हैं। उसे मक्का हाथ से जाता नजर आने लगा और उसे ये खिफ़त भी महसूस होने लगी थी कि उसकी घात की नाकामी पर अबू सुफियान उसे ताना देगा और हंसी उड़ाएगा। फिर उसे कुरैश की शिकस्त और मक्का के सुकूत का मुजरिम कहा जाएगा। उसने अपने सवारों को एक रास्ता समझा कर कहा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंचना है। ये दूर का रास्ता था, लेकिन वो मुसलमानों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके 300 सवारों ने घोड़ों को ईड़े लगा दी। रास्ता लंबा होने की वजह से 3 मील का फासला 1.5 गुना हो गया था, जिसे खालिद रफ्तार से कम करने के जतन कर रहा था। अरबी नस्ल के आला घोड़े शाम से बहुत पहले मक्का पहुंच गए। वहां मुसलमानों की अभी हवा भी नहीं पहुंची थी। मक्का के लोग घोड़ों के शोरगुल पर घरों से निकल आए। अबू सुफियान भी बाहर आ गया। क्या तुम्हारी घात कामयाब रही? अबू सुफियान ने पूछा। वो घात में आए ही नहीं। खालिद ने घोड़े से कूद कर उतरते हुए कहा, क्या तुम मक्का के इर्द गिर्द ऐसी खंदक खुदवा सकते हो जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इर्द गिर्द खुदवाई थी? वो कहाँ है? अबू सुफियान ने घबराई हुई आवाज में पूछा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुझे उनकी कुछ खबर दो? जितनी देर में तुम खबर सुनते और सोचते हो, इतनी देर में वो मक्का को मुहासरे में ले लेंगे। खालिद ने कहा, हुबुल और उज़ा की अजमत की कसम, वो पहाड़ों और चट्टानों को रौंदते आ रहे हैं। अगर वो किराअल गैमम में से किसी और रास्ते से गुजरे हैं तो वो इंसान नहीं,
कोई प्यादा वहां से इतनी तेजी से नहीं गुजर सकता जितनी तेजी से वो गुजर आए हैं। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जरा ठंडे होकर सोचो, खुदा की कसम घबराहट से तुम्हारी आवाज कांप रही है। अबू सुफियान, खालिद ने जलकर कहा, तुम में सिर्फ ये खूबी है कि तुम मेरे कबीले के सरदार हो। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इनके लिए मक्का की ईंट से ईंट बजा देना कोई मुश्किल नहीं। खालिद ने देखा कि उसके दो साथी सालार अक्रिमा और सफ़वान करीब ही खड़े थे। खालिद ने उनसे कहा, आज भूल जाओ कि तुम्हारा सरदार कौन है, सिर्फ ये याद रखो कि मक्का पर तूफान आ रहा है। अपनी आन को बचाओ, यहाँ खड़े एक दूसरे का मुंह न देखो, अपने शहर को बचाओ, अपने देवताओं को बचाओ। सारे शहर में भगदड़ बपा हो गई थी। लड़ने वाले लोग बर्छियां, तलवारें और तीर कमान उठाए मक्का के दिफा को निकल आए। औरतें और बच्चों को ऐसे बड़े मकानों में मुंतकिल किया जाने लगा जो कलों जैसे थे। जवान औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो गईं। ये उनके शहर और जानो माल का ही नहीं, उनके मजहब का भी मसला था। ये दो नजरियों की टक्कर थी, लेकिन खालिद उसे अपने ज़ाती वक़ार का और अपने ख़ानदानी वक़ार का भी मसला समझता था। उसका ख़ानदान जंगो जदल के लिए मशहूर था। उसके बाप को लोग अस्करी कायद कहा करते थे। खालिद अपने ख़ानदान के नाम और ख़ानदानी रिवायात को जिंदा रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसने अबू सुफियान को नज़रअंदाज कर दिया, अक्रिमा और सफ़वान को साथ लिया और ऐसी चालें सोच ली जिनसे वो मुसलमानों को शहर से दूर रख सकता था। उसने सवारों की कुछ तादाद इस काम के लिए मुंतखब कर ली कि ये सवार शहर से दूर चले जाएं और मुसलमान अगर मुहासरा कर लें तो ये घुड़सवार अकब से मुहासरे पर हमला कर दें, मगर वहां जम कर लड़े नहीं, बल्कि मुहासरे में कहीं शगाफ डालकर भाग जाएं। शहर में अफरा तफरी और लड़ने वालों की भाग दौड़ और ललकार में चंद एक औरतों की मुतरन्नम आवाजें सुनाई देने लगीं। उनकी आवाजें एक आवाज बन गई थी। वो रज़मिया गीत गा रही थीं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह कत्ल का जिक्र था। बड़ा जोशीला और भड़का देने वाला गीत था। ये औरतें गलियों में ये गीत गाती फिर रही थीं। चंद एक मुसल्लाह शुतर सवारों की मदीना की तरफ से आने वाले रस्ते पर और दो तीन और समतों को दौड़ा दिया गया कि वो मुसलमानों की पेशकदमी की खबर पहुंचाते रहें। औरतें ऊंचे मकानों की छतों पर चढ़कर मदीना की तरफ देख रही थीं। सूरज उफक में उतरता जा रहा था। सहरा की शफक बड़ी दिलफरेब हुआ करती है, मगर उस शाम मक्का वालों को शफक में लहू के रंग दिखाई दे रहे थे। कहीं से किसी भी तरफ से गर्द उड़ती नजर नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।